اب بات کرتے ہیں قوم شعیب علیہ السلام کے ایوب کے بارے میں۔ یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی آسان طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمبر 2، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ نمبر 3، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبہ کیا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو، جب کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مکالمہ کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا، اور ہمیں شایان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واعظ و نصیحت کرتے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبہ فرمایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں کچھ ان الفاظ میں کیا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ انہوں نے کہا،
शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूं और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूं और उसकी तरफ रजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करवा दे कि जिस मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़े हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़े हो। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनाचे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाजानी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, उन्होंने कहा, शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई न होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ परवरदिगार, हमें और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 99। दरहकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और दोस्तों, अब बात करते हैं कौम शुएब पर अजाब इलाही के नजूल की। याद रहे कि कौम शुएब अलैहिस्सलाम 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से नेस्तो नाबूद किया। जैसा कि कुरान करीम में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शुएब पर आया। नंबर 1 जमीनी भौचाल या जलजला, नंबर 2 चंगाड़ और नंबर 3 आग के बादल। सूरह आराफ में है कि उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने उन यानी शुएब अलैहिस्सलाम को झूठा समझा, सो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया है, क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खर उड़ाया करते, बेब्तियां कसते थे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए उस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 94 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और सूरह शोरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है
और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। चूंकि उन्होंने झुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी कम न कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए। चुनाचे इस मुसीबत से घबराकर बस्ती से जंगल की तरफ भागे। वहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरजने लगी और फिर आसमान से एक सख्त चिंगाड़ आई तो उसने उनकी रूहों को निकाल दिया। कलेजे फट गए और जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया और सब औंधे गिरे पड़े रह गए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहां से चल दिए। जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आप अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं क़याम रहा। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफकत और रहमत के सबब दिल दुखा। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को खिताब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैर खाही में कोई दकीका फरोगुजाश्त न किया था, मगर मैं काफिर कौम को कहां तक गम यानी बर्दाश्त करूं। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र मुबारक की। दोस्तों, याद रहे कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। रिवायात के मुताबिक इंतकाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर अलसल्त के करीब वादी शुएब में आप अलैहिस्सलाम से मंसूब एक मजार है, जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और उनसे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रिवायत यह भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हिजर मौत के मशहूर शहर शेवन चले गए थे। उसके मगरबी जानिब शबाम नामी मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबा से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत बयान किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।